Hi everyone. So this will be our video number third, and we are looking for some questions which are being asked in the IIT Madras. That's BS online degree, and we have some questions from the joint distribution, or we can say multivariate distribution. That's simply when you are involved, when you are having two or more than two random variables, like we are given with the joint probability density function. So here is the question that we are given with the PDF. We are given with the PDF, and you are asked to calculate this probability. ठीक है, so आपको यहाँ पे निकालना है कि probability, that's the conditional probability of x given y when y is equal to 1. This is already given. At y is equal to 1, what will be the conditional x given y? As you know, how we can calculate the conditional distribution f of x given y, that is simply f of x comma y divided by f of y. So here we need the marginal of y, right? This is simple question. This is simple question. And see, in next question asked the we are asked to find again the conditional distribution, but here is the change of this limit. That's the limit of y, and you are asked to find the y given x. And in question number third, you are asked to find the covariance between x comma y, and in fourth question, you are asked to find the probability of this. This is the important question. This is the important question, right? And this question is not from IIT Madras. This question is from IIT Madras, but in IIT JAM exam, this question was asked in IIT JAM exam. ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो उनके जो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है वहां पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता क्या है, सी, अगर हम क्वेश्चन नंबर, पहले ये चारों क्वेश्चंस आप लिख लेना, देन एक बार ट्राई करके फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना। तो सी, पहले वाले का सॉल्यूशन क्या होगा? हमारे पास पीडीएफ जो है, दैट्स जॉइंट पीडीएफ, वो कुछ ऐसे है, ठीक है। 3xy 1 माइनस एक्स, और जो लिमिट है x की वो बिटवीन 0 एंड 1 है, और y की जो लिमिट है वो 0 एंड 2 के बिटवीन है। क्लियर? एंड 0 अदरवाइज, देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमें फाइंड आउट करना है। सी, हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे मार्जिनल। क्या निकालेंगे हम? मार्जिनल ऑफ y। वो कैसे निकलता है? वो सिंपली f ऑफ x कमा y डी x की लिमिट आएगी यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास f ऑफ y। अगर हमें f ऑफ x निकालना तो लिमिट यहाँ पे चेंज होगा, वो होगा dy। बस यही हम मार्जिनल में करते हैं, ठीक है। यही हम मार्जिनल में करते हैं। तो से अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि x जो मार्जिनल ऑफ y है, दैट्स द लिमिट विल बी दी दिस इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो से 0 to 1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f ऑफ y, 0 to 1 3x y 1 minus x dx, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे y क्या है, y तो कांस्टेंट रहेगा dx के रेस्पेक्ट में, और 3 भी क्या है, कांस्टेंट है। दोनों क्या है, दोनों कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर ले सकता हूँ, 3y, और दिस इज 0 to 1 x 1 minus x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 minus 1, इसको भी 2 minus 1 लिख सकता हूँ मैं, 2 minus 1 2 minus 1 लिख सकता हूँ मैं। अब देखो क्या मैं व्हाट्स दिस,
अगर आपको कुछ दिख रहा होगा, व्हाट्स दिस? दिस इज 0 to 1 x m minus 1 1 minus x n minus 1 which is equal to beta m comma n. क्या है मेरे पास? ये बीटा m comma n. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y, this is beta 2 comma 2 comma 2. So this will be equal to 3y, what's beta m comma n, that's gamma m gamma n gamma m plus n. तो ये होगा gamma 2 gamma 4 and this will be equal to 3y gamma 2. देखो gamma 2 होता है 1 factorial, that's 1. So ये भी 1, ये भी 1. gamma 4 होता है 3 factorial which is 3 into 2, that is 6. So this is 6. So ये आएगा y by 2. So मेरे पास जो मार्जिनल है f of y which is y by 2. ठीक है, ये मेरे पास मार्जिनल आया. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए and what's f of y? पहले f of y at y is equal to 1, वही तो क्वेश्चन में लिखा है ना. तो ये होगा 1 by 2. अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए f of x given y. तो वो होगा f of x comma y divided by f of y. What's f of y? एंड यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 1 by 2 है. ठीक है, और y इज इक्वल टू 1, यही तो है. इसी पे तो हमें देखना है. जो कंडीशनल है वो तो यही है ना, लिमिट तो x ग्रेटर देन 1 by 2 है. अब देखो यहाँ पे इस चीज को समझना. देखो व्हाट्स f of y? वो 1 by 2 है. सो अगर मैं ऐसे लिखूंगा 1 by 2, और ये क्या है? ये f of x comma y है. f of x comma y, दैट्स द जॉइंट. वो क्या है? जॉइंट क्या है मेरे पास? जॉइंट है मेरे पास 3xy 1 minus x. अब देखो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट कैसे करना है? कि y को पहले 1 रखना है, तो ये आएगा 3x 1 minus x, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 और x की लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 1 by 2 है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 1 by 2, तो x की लिमिट 0 to 1 है ना, मतलब यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 by 2 है, तो 1 by 2 to 1 आएगा. 3x 1 minus x, क्या ये आएगा? एक बार चेक कर लो, क्या ये आएगा? बिल्कुल. देन दिस विल बी इक्वल टू, इस चीज को यहाँ पे समझना है आपको और कुछ नहीं करना है बस. अब देखो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 into 3 1 by 2 तो 1 x 1 minus x. ठीक है, अब इसको हम सीधे इंटीग्रेट करेंगे क्या? दिस इज 6, दिस इज 1 by 2 तो 1 x minus x square dx. अब देखो दिस इज 6. अब दिस इज 6 और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 3 1 by 2 to 1. अब क्या करेंगे? 6 तो एज इट इज है. अब इसको क्या करेंगे? x को पहले 1 by 2 अपर लिमिट 1 है माइनस लोअर लिमिट 1 by 4 into 2 हो गया इसका काम, माइनस 1 by 3 माइनस 2 to the 4 to the 8 1 by 8 into 3 हो गया इसका काम. ठीक है, अब देखो अब ये किसके बराबर हो गया? बराबर 6 8 minus 2 that's 6 4 2 are 8 2 are 16 minus 8 3 are 24 minus 3 that's 21 divided by 8 3 are 24 into 3. क्लियर? एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे. अब देखो ये क्या होगा? 2 3s are 2 8s are 3 1s are 3 7s are. ये हो गया. ठीक है, so this is 6 24 into 3 minus this is 56 divided by 8 into 24. So this is nothing but 6 ones are 6 fours are. So this is 8 fours are 32 and what will be this? This will be 4 threes are 12, 3 twos are 6 and this is 7 minus 56, that is 12 minus 6, this is 16. So the answer will be 1 by 2. 1 by 2 is my correct answer. For question number 1, the correct answer will be 1 by 2.
what I did, I simply wrote f of x given y, f of x comma y divided by f of y. This is my marginal, this is my joint. But whenever we talk about the probability of this, and you are given with only one condition, that's f of y at y is equal to, you need to find the value of this marginal of y first, then calculate f of x given y, and whatever will be the condition, according to that condition you can solve and get the exact answer, right? So now what's question number 2? Let's see what's question number 2. Let's see. That is 1 by 8 x plus y, and the limit will be 0 to 2, 0 to 2, and you need to find the value of this. See, question number 2, solution. You are given with f of x comma y, f of x comma y is equal to, wait a minute, हाँ, f of x comma y क्या है हमारे पास, joint density function, that's 1 by 8 x plus y, and the limit was from x to 2 and y was also from 0 to 2, right? Then you need to find the probability 1 by 2, मतलब जो y का रेंज है वो 1 by 2 से 1 है, and x 1 by 2, मतलब यहाँ पे अब आपको क्या निकालना, मार्जिनल ऑफ x निकालना है. So what's marginal of x? That is nothing but f of x comma y with respect to dy हमें इंटीग्रेट करना है. So this is nothing but 0 to 2 1 by 8 x plus y dy, x plus y dy. तो यहां से ये कुछ ऐसे निकल के आएगा, अगर मैं लिखूं that is 1 by 8 तो एज इट इज है, dy के रेस्पेक्ट में x क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही आएगा 2 minus 2, मतलब 2 minus 0 is 2 और x एज इट इज है, प्लस y square divided by 2, that is 1 by 2 y square, 2 2s are 4. मतलब सिंपल इंटीग्रेशन किया मैंने और कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इंटीग्रेशन किया मैंने. सो यहां से 2 1s are 2 2s are 2 को बाहर लेंगे, ये आएगा 1 by 4 x plus 1. ठीक है, ये आया मेरे पास f of x, that is x plus 1 divided by 4. ये आया मेरे पास. नाउ अब मुझे चाहिए क्या, जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया ना, सेम टू सेम डिट्टो वही यहाँ पे भी करना है. दैट्स f of y given x, दैट इज लिमिट क्या था y का जो हमें पूछा गया क्वेश्चन में, दैट इज y is between 1 by 2 to 1. So this is f of x given y, y is between 1 by 2 to 1 and x is equal to 1. यही है ना, x is equal to 1 पे, नहीं 1 by 2 पे, डिवाइड बाय f of x x. अब यही तो निकालना है हमें, यही तो हमें निकालना है. अब देखो ये कैसे होगा, इस चीज को समझो, ये कैसे होगा. नाउ f of x x is equal to x plus 1 divided by 4. Now f of x x at किस पे देखना है हमें, 1 by 2 पे, वो क्या होगा 1 by 2 plus 1 divided by 4, that is 3 by 8. क्या यही है 3 by 8, बिल्कुल. So what's f of x given y, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हम लिखेंगे यहाँ पे. So see, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 1 by 8 x plus y, 1 by 8, what's x, x की जगह क्या डालना है हमें, 1 by 2 plus y डिवाइड by 3 by 8, और इसी को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 by 2 to 1, सिंपली dy के रेस्पेक्ट में. देखो कोई x की टर्म नहीं है, अब dy के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा 8 by 3 into 1 by 8, 1 by 2 to 1, 1 by 2 plus y
dy। सो यहां से ये कैंसल कैंसल 1/3, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, 1/2 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1 माइनस 1/4। कैसे किया मैंने, 1/2 तो कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस 1/2 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। वाई स्क्वायर यहाँ पे मान लो ये वाई स्क्वायर है डिवाइड बाई 2, सो डिवाइड बाई 2 इसको मैंने बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर पहले 1 डालेंगे, दैट्स 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इज 1/4। आई होप कि यहाँ पे ये स्टेप आपको समझ आया होगा। नाउ सी ये होगा 1/3 1/4 माइनस 4 माइनस 3 3/8, दिस इज 8। अरे कहीं पे गलती हो गई, नेगेटिव तो नहीं आएगा ये, नेगेटिव तो नहीं आएगा ये, फिर से देखते हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा, ये तो 1/3 एज इट इज है, 1/2 तो 1, मतलब 1/2 1 माइनस 1/2 प्लस, अच्छा प्लस था यहाँ पे, ठीक है प्लस था, मैंने माइनस लिखा था, वाई स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 1/2 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, सो दिस इज 1/3 1/2 1/2 प्लस 1/2 4 minus 1, that's 3/4. So this is 1/3 1/4 plus 3/8. This is 4 2s are 5/8 3s are 24. क्या यही है? 5/24 is the correct answer. Yes, 5/24 is the correct answer. So ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस आपको आईआईटी जैम गेट में भी बहुत हेल्प करेंगे, इवन कि आईएसएस में भी, क्योंकि आईएसएस में डायरेक्ट यही क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आईएसएस में मिलेंगे, गेट में मिलेंगे, जैम में मिलेंगे। अब देखो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3/4 गिवन है और लिमिट कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है। लिमिट कहाँ से है, 0 टू, एक पेज पे लिख लेता हूं मैं, 0 मतलब y की लिमिट है 0 टू x और x की है y टू 1, ठीक है। और दिस इज 3/4, हमें पूछा गया है 8 कोवेरिएंस ऑफ x, y। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, समझना, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये मेरे पास, यस। f ऑफ x, y जो था वो था मेरे पास, कहाँ गया ये, 3/4, 3/4 ही था ना शायद, हाँ 3/4, और y x की जो लिमिट थी वो बिटवीन y टू 1 थी, और y की लिमिट 0 टू x है, 0 अदरवाइज। क्या पूछा गया, फाइंड कोवेरिएंस बिटवीन x, y, ये निकालना है हमें। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो कोवेरिएंस निकालने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। कोवेरिएंस बिटवीन x, y होता है, ये होता है बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ x y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अब देखो इसके लिए आपको चाहिए इसका मार्जिनल, इसका मार्जिनल, ठीक है। या कोवेरिएंस बिटवीन x, y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, y, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे आपको चाहिए जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। अब देखो अगर मैं जॉइंट निकालने बैठूं, 8 है ना, यहाँ पे 8 है, अगर मैं जॉइंट निकालने बैठूं, वो थोड़ा सा किसी किसी को वो कॉम्प्लिकेट, दोनों तरीके से देखते हैं यार, चलो दोनों तरीके से देखते हैं। पहले हम जाएंगे इस मेथड से, या डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो 3/4 x, xy, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ xy। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें डबल इंटीग्रेशन आएगा। सिंगल इंटीग्रेशन अगर मैं y के रेस्पेक्ट में देखूंगा, y के रेस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये तो 0 टू x है इसकी लिमिट, और x की लिमिट है 0 टू 1, सो dy dx,
This is my expectation of x comma y, and this will be nothing but 0 to 1 3 by 4 x तो constant है, this is y square upon 2, लिमिट कहाँ से 0 to x dx, this is nothing but 3 by 8 0 to 1 x square, हाँ dx, this is 3 by 8 x cube by 3 into 1 by 3, this is 1 by 8, so expectation of x आया 1 by 8. अब देखो ये expectation of x y आया 1 by 8. Now what's expectation of x? That's nothing, double integration x into 3 by 4 dy dx. So this is 0 to x, 0 to 1. So इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1 3 by 4 x square dx. So this is 1 by 4. और expectation of y भी कुछ ऐसी ही आएगा. Expectation of y will be 0 to 1, sorry, double integration 3 by 4 y dx के रेस्पेक्ट में करेंगे हम पहले. अब देखो अगर हम dx के रेस्पेक्ट में यहाँ से करेंगे तो पहले x क्या आएगा, y to 1, x की लिमिट आएगी y to 1, y to 1 और ये 0 to 1. सो ये आएगा 0 to 1. व्हाट्स dx? dx तो है ही नहीं, आएगा 3 by 4 y 1 minus y. अब ये कौन सा फंक्शन बना, यहाँ पे बीटा फंक्शन बना, ये बीटा 2, 2, इसकी तो वैल्यू पता है 1 by 6 है. दिस इज 3 1s are 3 2s are 4 2s are 8, ये आया 1 by 8. ठीक है. अब देखो कोवेरियंस बिटवीन x, y इज इक्वल टू expectation of xy minus expectation of x expectation of y. ये कैलकुलेट कर लेना आप, इसका आंसर आपको मिलेगा.